Welcome student. Today I am going to discuss about secondary lymphoid organs. We have already studied about the secondary organ lymph node. उसके पहले हम लोग ने प्राइमरी ऑर्गन्स को देखा था. प्राइमरी ऑर्गन दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस. बोन मैरो जहाँ से टी सेल और बी सेल की ओरिजिन है, दैट इज दे बॉर्न देयर, एंड बी सेल मैच्योर इन बोन मैरो. बॉर्न भी होगा और मैच्योर भी होगा, बट टी सेल बॉर्न इन द बोन मैरो बट educate or mature in thymus, and from there primary organs they reaches to the secondary organ. So secondary organ is the organ where they perform their job. वो अपनी activities को एक्शन को परफॉर्म करते हैं. दे इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्सेज. वो इम्यून रिस्पॉन्सेज करते हैं, दैट इज एंटीजेनिक चैलेंजेस के अगेंस्ट वो इंड्यूस होंगे, रिस्पॉन्स देंगे. सो हियर द स्प्लीन एज ए secondary lymphoid organ. The spleen is an organ in the upper far left part of the abdomen to the left of the stomach. The spleen varies in size and shape between people, but it's commonly fist shape. You know fist shape, that is मुट्ठी के आकार के. Fist means मुट्ठी के आकार के. Purple in color and about 4 inches long. It is similar to lymph node in shape and structure, but it is much larger. The spleen is the largest lymphatic organ in the body. It is surrounded by a connective tissue that is known as capsule, which extends inward to divide the organ into lobules, that is called trabeculae. The spleen consists of two types of tissues called white pulp and red pulp. The spleen acts as a filter. It weeds out old and damaged cells and helps control the amount of blood and blood cells that circulate in the body. It contains white blood cells called lymphocytes and macrophages. These cells work to attack and destroy germs and remove them from the blood that passes through the spleen. Now, here location of spleen. This is the human body, and look here, this part, this portion is a small brown color, is the spleen, and this spleen is shown here by the histological structure. Look here, there is a white pulp, this one white pulp, this white region, that is the white pulp, and another is the red pulp. Red pulp is surrounding red pulp. आप देख सकते हैं कि रेड पल्प का एरिया जो है ज़्यादा ऑक्यूपाई किया गया है और वाइट पल्प जो है वो लेसर एरिया है. ओके, नाउ लुक हियर इन दिस डायग्राम. This diagram, that is the red pulp. रेड पल्प ऑक्यूपाई 75%. ये 75% आपको दिख रहा है. ये जो है आप 75% जो lymph node का एरिया है, दैट इज ऑक्यूपाई बाई रेड पल्प, एंड वाइट पल्प ऑक्यूपाई 25%. ओके, तो रेड पल्प जिसमें कि हम कह सकते हैं क्या क्या होता है. एक स्ट्रक्चर फिर से देखें हम. दिस वन इज द कैप्सूल आउटर मोस्ट. ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, एंड दिस इज द इन्वेजिनेशन. ये आपको दिख रहा होगा. दिस इज द ट्रेबिकुली. दिस ट्रेबिकुली डिवाइड द स्प्लीन इनटू लोब्यूल और चैम्बर्स. ये कंपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर देता है. ओके, तो दिस वन इज द कैप्सूल एंड दिस इज द ट्रेबिकुली, and here sinuses, vascular sinuses. Red pulp zone, that is the area where large amount of RBCs and macrophages and lymphocytes. इस एरिया में आपको बहुत सी RBCs मिलेंगी. रेड कलर RBC की प्रेजेंस और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से है. मैक्रोफेजेस भी होंगे और लिम्फोसाइट्स भी होंगी.
इट डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड डिफेंसिव आरबीसी, जो आरबीसी जो है जिनकी लाइफ पूरी हो गई होती है 120 डेज और वो वीकर हो जाती हैं, वो जो है इस स्प्लीन में आके जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड फॉर द आरबीसी, ठीक है। एंड नाउ इन हियर that is related to our immunology, white pulp zone, this pulp, and this is the zone of tissues that is immunologically active region of the spleen, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि एक रेड पल्प है, रेड पल्प लार्जर है, मेजर एरिया है, बट हमारा जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन होगा स्प्लीन का, दैट इज वाइट पल्प which occupy 25% of the spleen. Okay, so look here, there is a splanchnic artery. Okay, as you know, blood enters into the spleen through the artery, and there is the splanchnic vein. So here is the vein, blood comes outside the spleen, that is through the veins. Here another structure is also present, that is called efferent lymphatic vessels. Efferent lymphatic vessels. That is basic difference between lymph node and spleen. lymph node में हमने देखा था कि जो है afferent के थ्रू जो है वो यहाँ पे आपको कैप्सूल में afferent lymphatic vessels थी, that is absent in this case. Okay, only efferent जो डायग्राम में शो नहीं है, बट efferent भी यहाँ पे एक्चुअली लिम्फ स्प्लीन में एंटर नहीं करती, ये यहीं पे फॉर्म होती है. सो देयर इज अ आउट गोइंग, इनकमिंग ना होके सिर्फ आउट गोइंग है लिम्फ की. सो लिम्फ इज फॉर्म हेयर इनसाइड द स्प्लीन. Okay, that is the basic difference between lymph node and spleen. Now it's white pulp. White pulps, look here, there is a primary follicle, marginal zone and periarterial lymphoid sheath, that is pulse. ये थ्री मेन जोन्स जो है हमें इनको समझना होगा कि what are these structures. तो अब आप देखिए कि जो हमारे जो एंटीजेंस हैं, दैट इज ब्लड बॉर्न एंटीजन enters into the spleen through splenic artery, that is blood borne. This is a bit difficult to write here, so let's in next diagram we'll go through next diagram. Okay, look here, see is a simple diagram in which, look here, this is the artery, that is splanchnic artery. This one is the splanchnic artery, and this is the splanchnic vein. Okay, so splanchnic artery, we can change the figure color. Look here, suppose this is the splanchnic artery, enters into the, this is the hilum, this is kidney shaped structure, this portion is hilum and this is the convex part of the capsule. Okay, suppose कि आप देख सकते हैं कि ये हम एक बार फिर से ये हमारा जो है ये splanchnic artery that enters into the spleen, and this artery is known as trabecular arteriole. Okay, and
further branching of this, that is central arteriole. This one, central arteriole. Okay, you can understand. This is the splenic artery. This is the trabecular arteriole, and next branching is the central arteriole. Okay, so these three zones, marginal, pars एंड फॉलिकल, व्हाट इज दिस? आप देख सकते हो कि ठीक जो एक हमारी सेंट्रल आर्टीरियोल, around the central arteriole there is a number of cells, small, in this case yellow zone. These are the T cells. ये बिल्कुल पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा. T cells, number of T cell, numbers of T cell, number of T cells. Okay, so this is the central arteriole. So very bad handwriting. Imagine this is the central arteriole, which is covered by the T cell rich. So this is the sheath like structure. Okay, so sheath like structure. So we can say sheath का नाम क्या है? हम कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं पाल्स. दैट इज पेरी आर्टेरियोल लिम्फोइड शीथ, पाल्स. तो जो हमारी ये कैपिलरी है, जो सेंट्रल आर्टेरियोल है, दैट इज सराउंडेड बाय द T cells, that is the pars. Okay, and then after that there is a marginal zone. आपको लाइटर येलो जोन दिख रहा है, that is the marginal zone. ओके, तो मार्जिनल जोन जिसमें आप देख रहे हैं, मार्जिनल जोन जहाँ पे लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस की प्रेजेंस होगी. ओके, और लास्ट में आपको ये दिख रहा है फॉलिकल, दिस वन, ये फॉलिकल. तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, दे हैव बी सेल्स, नेव बी सेल्स एंड जर्मिनल सेंटर्स, जहाँ पे वो प्रोलिफरेट करेंगे, चेंजेस आएंगे उसमें. तो ये है. तो अब आपको ये समझिए कि इतनी सी बात समझ लेनी है कि जो एंटीजन है, सपोज कि एनी एंटीजन, दैट इज AG, एंटीजन वो एंटर किया आपके किसी प्लेसेस से, आपको कहाँ एंटर करेगा? स्प्लैनिक आर्टरी के थ्रू. स्प्लैनिक आर्टरी से जो एंटर करेगा, और फिर कहाँ से होता हुआ? ट्रेबिकुलर आर्टरी से आर्टेरियोल से होता हुआ सेंट्रल आर्टेरियोल. ठीक है, एक्चुअली हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले सकते हैं. लुक हियर, आप ये समझिए कि हमारा जो एंटीजन है, दैट इज AG एंटीजन, वो एंटर किया कैसे? स्प्लैनिक artery. Then trabecular artery, शॉर्ट में लिखते हैं artery. Then central arteriole. ठीक है, अब यहाँ से जो है ब्लड, सपोज ये यहाँ से एंटीजन जो है वो यहाँ तक आ गया. अब ब्लड से जो है, अब उसको बाहर आना है, तो ये उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होंगी, ब्लड वेसल्स की, उसके से भी पास होके ये आ जाते हैं मार्जिनल उसमें. तो पहले यहाँ पे जो होगी, वहाँ पे क्या है? एक शीथ है, ये शीथ होगी जिसको हम पाल्स कहते हैं. ठीक, तो वहाँ से ये मार्जिनल जोन से, पाल्स से क्रॉस करके ये मार्जिनल जोन में जाएंगे. मार्जिनल जोन में जो है वो वहाँ पे
टी सेल और बी सेल का इंटरेक्शन होगा। तो अब बी सेल जब एक्टिवेट हो जाएंगी तो एज इट इज़ जब एक्टिवेशन होगा बी, हम लोग पहले भी देखा था कि टी सेल्स जो कि हेल्पर टी सेल्स होंगी वो जो है एक्टिवेट करेंगी बी सेल को, एंड देन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल एंड दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज एट IgM and IgG। तो ये आपका फॉर्म होगा और फिर वो पैथोजन को किल करेंगे। तो इस तरह से आपका एज इट इज़ जो हमने पहले भी देखा था कि APC डेंड्राइटिक सेल वो उसको प्रेजेंट करेंगे, MSC के प्रेजेंट क्लास 2 MSC उसको करेगा। अब इसमें हमारी डायरेक्ट वायरल इन्फेक्शन जब हुआ तो वायरसेस का भी होगा। तो सेम जो प्रिंसिपल हम लोगों ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखा था वो सारी जो है यहाँ इन्वॉल्व होंगी एंड फाइनली जो है वो किल कर देंगी पैथोजन को, मार्जिन को। तो ये हमारा वाइट जो पल्प है ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है इस तरह से। तो वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो जितनी भी मेथड्स हैं वो सारी यहाँ पे एक्टिवेट होके इंड्यूस करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से जो स्प्लीन है उसका दो इम्पॉर्टेंट रोल हो गया। एक तो रेड पल्प जहाँ पे वो RBCs और हीमोग्लोबिन जो एक डिग्रेडेशन होता है हीमोग्लोबिन का और RBCs का, और वो उसको वहाँ भी मैक्रोफेजेस की प्रेजेंस होगी। जो साइनसेस हैं वेनस साइनसेस जो है उसके बाहर की तरफ जो है मैक्रोफेजेस होगी जो जो डिस्ट्रॉइंग RBCs हैं वो उनको वो फुल्ली जो है इनगल्फ करके वहाँ क्लीन कर देते हैं। दैट इज़ द गैवियार्ड ऑफ द RBC। तो स्प्लीन को हम लोग कहते हैं गैवियार्ड ऑफ द RBC। तो रेड पल्प हमारा जो है वो RBC जो वीकर हैं, जो डिफेंसिव थी और जिनकी लाइफ पूरी हो गई है उसको किल करके डिस्ट्रॉय करके इंगल्फ कर जाती है मैक्रोफेजेस। और जो वाइट पल्प है वो जो है हाँ हमारा इन्वॉल्व होता है जहाँ पे चूँकि एंटीजेनिक चैलेंजेस जो होती हैं उन्हें वो हमारी ये वाइट पल्प जो एरिया है वहाँ पे एक्टिवेशन के थ्रू जो है टी सेल बी सेल का इंटरेक्शन होगा और जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं उस तरह से वो सारी चीज़ें चलेंगी जैसे हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी थी। तो ये एज इट इज़ हमारा जो वाइट पल्प रीजन है that is the immunologically active zone. That's all. Okay, so that is the spleen as a secondary lymphoid organ.